हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज स्कूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का रिवाइज सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जहां पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय सेक्रेटरी। So first of all, secretary का मतलब क्या होता है? The person who keeps everything secret and confidential is called as a secretary. And जैसे हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन देखा था, उस तरह से भी हम एक बार रिवीजन करेंगे। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And इसी तरह प्यार and support देते रहिए, even on your notification bell icon, so that latest video आपको मिले। So let's start with our question, that is importance of secretary. So first of all, definition जो हमने last time learn किया था उसको एक बार revise करेंगे। So secretary is the person who writes for others. Secretary कौन होता है? जो दूसरे के लिए लिखता है, जो business transactions होते हैं उसको note down करना, उसको लिखना, वो किसका काम होता है? Secretary का काम होता है। Even secretary is a paid employee of the organization who conduct correspondence, conduct meetings, who communicate with n number of persons. And secretary is appointed by whom? It is appointed by individual, government, society, corporation, public body, etc. तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेक्रेटरी होता क्या है। अभी आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी इन डिटेल। So let's start with our first point, that is expert advice and guidance. What is our first point? Expert advice and guidance. सेक्रेटरी क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सपर्ट एडवाइस देगा, गाइडेंस देगा, सजेशंस देगा किसी को। यहाँ पे किसको ये सजेशंस एंड गाइडेंस देने वाला है? आंसर विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज वी नो वेरी वेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ पर्सन हु मैनेज द कंपनी, who take the decisions for the company. तो ये मैनेजर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको इन्फॉर्म करना, उसको एडवाइस देना, सजेशंस देना रिगार्डिंग द मार्केट कंडीशंस, ये सब कौन करेगा? सेक्रेटरी। अभी ऐसा क्यों? बिकॉज सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। मार्केट कंडीशन क्या है वो उसको पता होता है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे, सेक्रेटरी हैज टू मैनेज एन नंबर ऑफ थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। Secretary is only the person who communicate with everyone. तो मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चेंज हुए, ये सभी के बारे में नॉलेज किसके पास होता है? सेक्रेटरी के पास होता है। तो सेक्रेटरी गिव एक्सपर्ट एडवाइस एंड सजेशंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू टेक अ राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, so that organization can get maximum profit. Next point, that is administrative. Secretary has to perform n number of administrative duties. Like if we say that is clerical work को perform करना, routine activities को perform करना, day to day administration work को देखना, reports को file करना, letters को file करना, emails के ऊपर reply देना, visitors को attend करना, meeting को conduct करना, meeting को schedule करना, all this work are done by whom? Secretary. So secretary is called as administrative officer of the organization. Third point, custodian of secret information. As we know very well, secretary is a person who keeps everything secret and confidential. So secretary is called as custodian of secret information. Custodian का अगर मतलब देखेंगे तो it is called as a custody. आपने लॉकर का कस्टडी सुना होगा, उसी तरह से सीक्रेट इंफॉर्मेशन का कस्टडी किसके पास है? सेक्रेटरी के पास है। सेक्रेटरी हैव एवरीथिंग, एवरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, रिगार्डिंग योर कंपनीज हो सकता है, ऑल सीक्रेट इंफॉर्मेशन आर देयर विथ whom? That is secretary. So secretary is called as custodian of secret information. Next point, correspondence. Secretary has to conduct correspondence with n number of persons. Correspondence का मतलब क्या होता है? हमने देखा था स्टूडेंट्स, आपको आता है to mention in coming box. So correspondence is a written communication in the form of letters, emails, and ये कौन करता है? सेक्रेटरी करता है।
ईमेल्स के ऊपर रिप्लाई देना, लेटर्स के ऊपर रिप्लाई देना, ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय सेक्रेटरी। इवन रिटन कम्युनिकेशन इज डन विथ होम? Written communication is done with government, with individual, with outsiders, with consumers, with we can say employees and all. तो हर एक पर्सन से कम्युनिकेट करना, करस्पॉन्डेंस को कंडक्ट करना, ये भी किसका काम होगा? सेक्रेटरी का काम होगा। Next one, legal compliance officer. Secretary has to know about the all legal information. सेक्रेटरी के पास कंप्लीट लीगल एंड अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। अगर वो नॉलेज कंपनी के सेक्रेटरी के पास नहीं होगा तो सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं बनेगा। कंपनी शुरू करने के लिए और कंपनी रन करने के लिए हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना होता है, बट उसका कंप्लीट नॉलेज किसके पास होना चाहिए? सेक्रेटरी का पास होना चाहिए। So, secretary is also called as legal compliance officer. Secretary should know each and everything about the Companies Act 2013, even the changes which are made by government in these policies. Next one, conduct meetings. हमें अच्छे से पता है कि कोई भी कंपनी होगा तो उसमें मीटिंग्स तो कंडक्ट होते हैं, बट मीटिंग कंडक्ट करने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी हैज टू वर्क upon the meetings and has to be conducted meeting on regular basis as per the information given by whom? Board of Directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप लेवल पर्सन है, जैसे इन्फॉर्म करेगा वैसे सेक्रेटरी मीटिंग को कंडक्ट करेगा। बट मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोई काम होता है क्या? डेफिनेटली यस। सेक्रेटरी हैज टू वर्क while conducting the meeting, but secretary कब काम करेगा? तो your answer will be secretary has to perform many duties and responsibility, that is before conducting the meeting, during the meeting and after the meeting. सेक्रेटरी को मीटिंग कंडक्ट करने से पहले भी काम करना होगा, जब मीटिंग कंडक्ट होगा तभी भी बहुत सारा काम करना होगा, एंड जब मीटिंग कंप्लीट होगा तभी भी काम करना होगा। अभी कौन से काम सेक्रेटरी को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग कंडक्ट करने होते वो हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। नेक्स्ट वन, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एज वेल एज स्टाफ। सेक्रेटरी किसके साथ लिंकअप होता है? टॉप लेवल पर्सन के साथ। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसा बताएगा, जैसा इंस्ट्रक्शंस देगा वैसे सेक्रेटरी परफॉर्म करेगा, और वो इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी किसको देने वाला है? स्टाफ को देने वाला है। सो सेक्रेटरी इज अ मिडिल पर्सन, द सेक्रेटरी इज अ लिंक बिटवीन हूम? मैनेजमेंट एज वेल एज स्टाफ। जो मैनेजमेंट ने बताया वो इंस्ट्रक्शन देना स्टाफ को, और स्टाफ से काम करवा के लेना, ये भी किसका काम होगा? सेक्रेटरी का काम होगा। So, secretary is called as a leader of the company. Secretary should have leadership qualities to get the work done from each and every employees of the organization. Next one, fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. अभी अगर हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो it is called SS and SA, secretarial standards and secretarial audit. इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज किसके पास होना चाहिए? सेक्रेटरी के पास होना चाहिए। दे आर नथिंग बट दे आर द लीगल रूल्स विच आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि विदाउट सेक्रेटरी ना तो बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा, ना तो बिजनेस रन हो पाएगा। सो वी कॉल्ड सेक्रेटरी इज द राइट हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज द इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेक्रेटरी होना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। वो हमने ये आंसर को पढ़ के समझा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। Still, if you have any doubt, you are free to ask any time in comment box. And thank you all my viewers and subscribers who have supported me till now. And keep supporting, keep learning, keep watching. Thank you.